Hello, student. Today we are going to learn one of the most interesting and important instrument in physics, the screw gauge. Before I starting the lecture, I want to show all the slides which I discuss later. First, see what is screw gauge. These are basically the parts, and there all the important topic included this lecture are given in a single slide. This is a basic image, and the second slide parts of screw gauge in details I will discuss, and the third where is screw gauge used I will discuss, and can a ruler this slide is also very important, and what is pitch I will discuss, and list count how to find list count or power of accuracy, and I will give you an example for correct reading. Okay, after that what is zero error I will discuss, types of zero error, positive zero error and negative zero error, and I will show a figure of zero error, positive, negative, and correct reading negative. Okay, before I starting this lecture, I discussed all the numerical problem which are given in the Selena publication book. I have already discussed. If you want to look at, then go to the playlist and start watching. This is only a basic or introduction class of screw gauge. Okay, starting now. Now imagine this. Suppose I give you a thin wire, a small metal ball, or a sheet of paper, and I ask you to measure its thickness. Can you measure it accurately using a ruler? No. Ruler? No. It cannot be possible to measure these things very accurately. Okay. Because some objects are too small to be measured precisely with an ordinary scale. That is why scientists invented a highly accurate instrument called the screw gauge. By the end of today's class, we will be able to understand what a screw gauge is. Second, identify all its parts. Third, calculate list count. Fourth, find zero error. Take correct readings and some example. So let's begin. First, if someone asks you what is screw gauge, then what will you say? Simply, you will say that a screw gauge is an instrument used to measure very small length, very small thickness and diameter of wire, radius of small sphere, and with very accuracy. Getting my point? If someone also asks you what are the principle of screw gauge, then you will simply say that the screw gauge works on the principle of screw. Okay, getting my point? Then go to a next slide. Huh. What are the parts of screw gauge? First, anvil. I will say in both language, English and Hindi as well. Okay, so that you can understand better. The first, what is this? What is the parts of? What is what is the first part of screw gauge? Is first I will take a pen. Uh, First is anvil. What is anvil? ये ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है फिक्स पार्ट में, ठीक है। ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? यहाँ पर जिसका भी हमको मेजर करना है उसको हम लोग यहाँ रखते हैं, और ये क्या करता है? ये फिक्स रहता है, ये मूव नहीं करता, ठीक है। फिर ये स्पिंडल के हम बता रहे हैं आगे, ये क्या मेनली आपको याद रखना है, क्या ये ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है, फिक्स पार्ट होता है ये, मतलब फिक्स रहता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या आपका? स्पिंडल। क्या है? स्पिंडल। तो स्पिंडल क्या करता है? ये आपका बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट करता है, मतलब आगे और पीछे ये मूव करता है, और ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखता है, मतलब ऑब्जेक्ट को होल्ड कर मतलब करने मतलब ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखने में हेल्प करता है। कैसे? जैसे ये ऑब्जेक्ट को हमको मेजर करना, तो ये आपका मूव करेगा आपका आगे, ठीक है, फॉरवर्ड मूव करेगा, इस फॉरवर्ड मूव करेगा, ये तो फिक्स रहेगा। ये कैसे मूव करेगा? जब हम लोग थिम्बल को सर्कुलेट घुमाएंगे, जब थिम्बल को रोटेट करेंगे तो स्पेंडल क्या होगा आपका? आगे बढ़ेगा, ठीक है, आगे बढ़ेगा इन द सेंस अब वो फॉरवर्ड मूव करेगा और ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? उसके बाद आपका क्या है? स्लीप। स्लीप ये मेन स्केल, इसके बारे में लॉक नट के बारे में बताएंगे, ठीक है। लॉक नट को पहले इसी को डिस्कस कर दे रहे, लॉक नट के बारे में, ठीक है। ये क्या होता है? स्पिंडल को लॉक करता है। जो स्पिंडल है ना, आपको दिख रहा है ना, स्पिंडल, स्पिंडल इसको लॉक करता है, ठीक है। स्पिंडल को क्या करता है? लॉक करता है।
और रीडिंग स्टेबल रखता है। ये रीडिंग को क्या करता है, स्टेबल करता है, कहीं मूव इधर उधर मूव ना कर जाए, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट को स्क्रू गेज के बीच में रखते हैं, फिर थिम्बल को हम लोग प्रॉपर घुमाते हैं, ठीक है। थिम्बल रोटेट करने से क्या होता है, ये जो स्पिंडल होता है वो मूव करता है। फिर लॉक नट को हम लोग क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं ताकि वो मूव ना करे। अब अभी स्पिंडल रुक जाता है, अब रीडिंग स्टेबल भी हो जाता है। मतलब अभी हम लोग लॉक नट को जैसे हम लोग घुमा देते हैं तो वो फिक्स हो जाता है और मूव करना इम्पॉसिबल होता है, ताकि ऑब्जेक्ट क्या रहे, फिक्स पॉइंट पर स्टेबल रहे, ठीक है। आ गया समझ में। उस ये लॉकनट का ये हम लोग वर्क देख लिया। अब हम लोग स्लीव का देखते हैं। स्लीव को ही मेन स्केल बोला जाता है। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये पूरा आपका क्या है, स्लीव है या मेन स्केल रीडिंग है। इसी से हम लोग रीडिंग लेते हैं मेन स्केल का, ठीक है। ये क्या होता है आपका, ये एमएम में या हाफ एमएम में ये मेजर करता है, ठीक है। एक में एमएम और एक में हाफ एमएम, ठीक है। ये दोनों ये शो करता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, थिम्बल। थिम्बल के बारे में हम लोग देखेंगे। ये सर्कुलर रोटेट करता है। ये क्या करता है, सर्कुलर रोटेट करता है, ठीक है। ये जो थिम्बल होता है ये क्या करता है, सर्कुलर स्केल भी इसी को बोला जाता है। ये रोटेट करता है, सर्कुलर स्केल रीडिंग देता है। मतलब क्या होता है, ये सर्कुलर स्केल रीडिंग देता है। जैसे जैसे ये मूव करता है, ये मतलब ये वाला सॉरी, ये जो सर्कुलर ये आपका रीड शो करता है, ठीक है। वैल्यू शो करता है, जैसे 45 40 35, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखें, ये थिम्बल जैसे जैसे घूमेगा ये आपका सर्कुलर स्केल भी क्या करता है, रोटेट करता है। और आफ्टर आफ्टर सम टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट आर होल्ड या फिर ऑब्जेक्ट आर फिक्स, देन कम्स द वैल्यू विच आई टेक एज अ सर्कुलर स्केल रीडिंग ऑन अ सर्कुलर स्केल, ओके। उसके बाद क्या होगा, रैचेट। क्या होता है रैचेट, रैचेट आपको दिख रहा है, ये वाला रैचेट है, ठीक है। रैचेट का क्या काम है, ये प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है। क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है और ऑब्जेक्ट को क्या होने से बचाता है, प्लस ये होने से बचाता है, ठीक है। ये सेफ्टी कंट्रोलर होता है। और एक चीज़ बता रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट पूरी तरह से फिक्स हो जाता है ना, तो रेचेट आवाज़ करता है ना, एक साउंड प्रोड्यूस करता है। तो उससे ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फिक्स हो चुका है और आगे वो मूव नहीं कर सकता, यानी कि स्पिंडल और फॉरवर्ड मतलब नहीं जा सकता है, ठीक है। ये रेचेट ये बताता है कि ऑब्जेक्ट फिक्स हो चुका है, ठीक है। इसको सेफ्टी कंट्रोलर भी बोला जाता है, ठीक है। साइंस में इसको सेफ्टी कंट्रोलर भी बोला जाता है, ठीक है। लोक नट के बारे में भी देख लिया हम लोग, स्लिप के बारे में देखिए, थिम्बल हम लोग सब पार्ट देख लिए। एनविल क्या होता है, ये फिक्स रहता है, ये ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है। स्पिंडल मूव करता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड। उसका स्लिप मेन स्केल रीडिंग प्रोवाइड करता है। थिम्बल रोटेट करता है आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में आपका स्पिंडल बैकवर्ड फॉरवर्ड जाता है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है वो आपका आपका एंटी क्लॉकवाइज में वो क्या होता है, बैकवर्ड आता है, ठीक है। देख लिया हम लोग, थिम्बल देख लिया, रैचेट भी देख लिया। रैचेट एक सेफ्टी कंट्रोलर होता है। जैसे ऑब्जेक्ट मतलब फिक्स हो जाता है तो वो रैचेट से थोड़ी सी साउंड प्रोड्यूस होती है, जिससे ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फिक्स हो चुका है, ठीक है। हम लोग सेकंड थर्ड स्लाइड में जाते हैं, क्या डिस्कस करना है, वेयर इज स्क्रू गेज। स्क्रू गेज कहाँ यूज़ किया जाता है, देखिए, मोबाइल रिपेयरिंग में, इंजीनियरिंग फील्ड में, बाइक इंजन में, वॉच मेकिंग में, साइंस लैब में, ठीक है। वॉच मेकिंग मतलब क्या, जहाँ घड़ी बनाया जाता है। तो यहाँ पर कितना अच्छा पॉइंट लिखा, जितना छोटा ऑब्जेक्ट उतनी पावरफुल मशीन। मतलब क्या बोल रहे हैं, जितना छोटा चीज़ को मेजरमेंट करना होता है वो उतना अच्छा मेजर करता है कौन, स्क्रू गेज। मतलब जितने छोटे ऑब्जेक्ट रहेगा उतना मतलब एक्यूरेटली ये मेजर कर पाता है कौन, स्क्रू गेज, ठीक है। हम लोग ये भी देख लिए, ठीक है। उसके बाद क्या देखना हम लोग को, उसके बाद वाला स्लाइड सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, क्या रूलर मेजर कर सकता है ये सब। रूलर मतलब कौन कौन सा स्केल जो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। बेसिकली मतलब क्या बोलेंगे, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में स्केल यूज़ करते हैं, ठीक है। रूल बोलते हैं जिसको, रूलर या रूल, ठीक है, रूलर स्केल। तो ये क्या हेयर को कर सकता है, थिन वायर को कर सकता है, नीडल को कर सकता है, तो आंसर है नहीं कर सकता है कौन, रूलर स्केल। तो इसके जगह पर कौन यूज़ होता है, स्क्रू गैज, ठीक है। देखिए, रूलर फेल हो जाता है, ये फेल हो जाता है, ये विंस हो जाता है। विंस दैट मीन्स क्या बोलना चाहते हैं, ये सबको मेजर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, आपका स्क्रू गेज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और डेफिनेशन सिंपल हम बताए भी है, स्क्रू गेज इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वेरी स्मॉल डायमेंशन एक्यूरेटली, ठीक है। ये बेसिकली हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिए उसी टाइम बता दिए थे, ठीक है। उसके बाद आपके क्या, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। पिच, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिच। पिच क्या होता है, तो पिच जो होता है डिस्टेंस मूव इन वन कंप्लीट रोटेशन। जैसे हम लोग थिम्बल इमेज में जाते हैं एक बार, ये जो आपको थिम्बल होता है सर्कुलर स्केल, ठीक है, ये वन मतलब वन रोटेशन में वो कितना मूव करता है स्पिंडल, वो बताता है उसका क्या, पिच। मतलब क्या बोल सकते हैं, द डिस्टेंस मूव इन वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड पिच। मतलब द डिस्टेंस मूव इन वन कंप्लीट मतलब एक रोटेशन में जो स्पिंडल कितना मूव करेगा वो बताएगा उसका पिच। क्या बताएगा, पिच बताएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा, और एक चीज़ हम बताने बोल दें, ये एक क्या होता है, इसको यू शेप्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यू शेप्ड फ्रेम। ये इसका काम क्या है, ये सारे चीज़ को होल्ड करके रखना है, ठीक है। होल्ड द इंटायर इंस्ट्रूमेंट टुगेदर, इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये यू शेप्ड होता है, यू शेप्ड फ्रेम।
ठीक है, ये क्या होता है, यू शेप्ड फ्रेम, ठीक है, यू शेप्ड फ्रेम। तो ये सारा चीज़ को होल्ड करके रखता है। हम लोग देख लिए, ये स्लाइड भी देख लिए कहाँ इसका यूज होता है, मोबाइल रिपेयर में स्क्रू गेज, इंजीनियरिंग में स्क्रू गेज यूज होता है, बाइक इंजन में, वॉच मेकिंग में, साइंस लैब में। मतलब ये मोर प्रिसाइजली मेजर को, मतलब मोर प्रिसाइजली एक्यूरेट वैल्यू देता है ये, ठीक है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है छोटे छोटे लैब में, छोटे छोटे मशीनों को मेजर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग पिच का देख लिए, द डिस्टेंस मूव इन वन कंप्लीट रोटेशन में वो कितना मूव कर रहा है। देख रहे जैसे इट स्पिंडल मूव 1 mm इन वन रोटेशन, जैसे अगर मान लीजिए स्पिंडल मूव कर रहा है 1 mm इन वन रोटेशन, मतलब एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो वो कितना मूव कर रहा है, 1 mm, सॉरी 1 mm का, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम बताएं तो पिच कितना हो जाएगा इसका, 1 mm, कितना हो जाएगा, 1 mm, ठीक है। आ गया समझ में। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, रुकिए 1 मिनट। हाँ, लिस्ट काउंट और पावर ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, तो लिस्ट काउंट्स मीन्स द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर एक्यूरेटली। मतलब क्या होता है, लिस्ट काउंट बताता है हर एक डिवाइस, मतलब हर एक इंस्ट्रूमेंट, उसका सब मतलब कुछ ना कुछ लिस्ट काउंट होता है जो उसका एबिलिटी को बताता है या औकात को बताता है कि वो कितना मतलब एक्यूरेटली मेजर कर सकता है किसी स्मॉल स्मॉल क्या स्मॉल मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है। मतलब यू कैन से दैट लिस्ट काउंट मीन्स द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर एक्यूरेटली, ओके। तो उसका एक फॉर्मूला भी आता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है, लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, पिच बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। मतलब क्या होता है, लिस्ट काउंट हम लोग इसमें भी पढ़े थे, किसमें बोलिए तो आपका वो वाला, इससे पहले जो पढ़े थे हम लोग लेक्चर दिए थे, किसका था वो, आपका वर्नियर कैलिपर में भी, उसका भी लिस्ट काउंट पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा, ठीक है। तो ये होगा लिस्ट काउंट। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दिया हुआ, पिच अगर 1 mm है और इसमें डिवीजन मान लीजिए 100 है, ठीक है, 100 डिवीजन है, तो उसका लिस्ट काउंट कितना का, 1/100 इक्वल टू 0.01 mm, जो इसका क्या होता है, वो लिस्ट काउंट होता है, ठीक है, 0.01। और आप बताइएगा ऑप्शन, ये मतलब कमेंट में कमेंट कीजिएगा वर्नियर कैलिपर का एक मतलब उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, एक आइडियल वर्नियर कैलिपर का, ठीक है। तो ये समझ में आ गया 0.01 mm कैसे आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाते हैं एक नेक्स्ट स्लाइड में, रुकिए। हाँ, एक तो रीडिंग बताया गया है, ठीक है। तो पहले आपको क्या देखना होगा, किस तरह से हम लोग स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप जिसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब रीडिंग को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, टोटल रीडिंग को, ठीक है। तो टोटल रीडिंग का फॉर्मूला जो होता है आपका मेन स्केल रीडिंग प्लस आपका क्या होता है, CSR, मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट, जो वैल्यू आता है वो आपका क्या आता है, टोटल रीडिंग आता है, ठीक है। वही चीज़ हम बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं आपका, टोटल रीडिंग अगर आएगा तो आपका मेन स्केल रीडिंग जो आपका स्लीव होगा, इन प्लस आपका जो आपका जो सर्कुलर स्केल होगा उसका रीडिंग और उसका लिस्ट काउंट कितना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहले लिस्ट काउंट को फाइंड आउट करेंगे। दूसरा क्या, हाँ दूसरा क्या है, उसके बाद उसका लिस्ट काउंट को वैल्यू निकाल देंगे, फिर मेन स्केल रीडिंग को देख लेंगे और आपके बाद सर्कुलर स्केल जो प्रोवाइड करेगा उससे लिस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग में देखिए 5 दिख रहा है, दिख रहा है ना, 5 दिख रहा है, उसके बाद एक स्लाइड दिख रहा है, तो कितना हो गया, 5.5 mm आ गया, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना दिख रहा है, देखिए 40 दिख रहा है, ठीक है, ये 40, 40 इंटू इसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.01 mm, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना है, 5.90 mm, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, आपका टोटल रीडिंग आ चुका है, ठीक है। ये 40 है, ये 40 आपको दिख रहा है जो इसके पैरेलल आया है, ठीक है, जो इसके पैरेलल आया है, मतलब किसके, मेन स्लिप या मेन स्केल के, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो आपको फाइनल रीडिंग समझ में आ गया कैसे आएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस ब्रैकेट में सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट, मतलब आपको समझ में, देखिए रीडिंग मेन स्केल रीडिंग तो फिक्स रहेगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग हम लोग देख लेंगे और लिस्ट काउंट उसका देख लेंगे, ठीक है। जो आएगा अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका ये मिल जाएगा, रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है, किसका, स्क्रू गेज का, ठीक है। समझ में आ गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, क्या दिया हुआ है। उसी तरह आप एग्जाम्पल जितना सारा न्यूमेरिकल हम सारा सॉल्व किए आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। उसके बाद जीरो एरर क्या होता है, व्हाट इज जीरो एरर, ठीक है। तो व्हेन द स्क्रू गेज शो ए रीडिंग इवन व्हेन नथिंग इज बीइंग मेजर इट इज कॉल्ड जीरो एरर। क्या बोल रहे हैं, जब किसी चीज़ को मेजर नहीं किया जाता है, व्हेन द स्क्रू गेज शो ए रीडिंग इवन व्हेन नथिंग इज बीइंग मेजर इट इज कॉल्ड जीरो एरर, ठीक है। या फिर वी कैन से दैट व्हेन द स्क्रू गेज इज फुली क्लोज, जब पूरा स्क्रू गेज क्या रहेगा, फुली क्लोज रहेगा, ठीक है। और यू कैन से ऑल्सो आइडियली जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल शुड कंसाइड विथ रेफरेंस लाइन, ठीक है, एकदम रेफरेंस आपको बताएंगे इमेज में थोड़ा देर बाद, ठीक है। टाइप्स ऑफ जीरो एरर, पहला पॉजिटिव जीरो एरर, व्हेन जीरो ऑफ ए सर्कुलर, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव, इफ द जीरो ऑफ ए सर्कुलर स्केल इज बिलो द रेफरेंस लाइन, आपको इमेज में बताएंगे, रुके।
देखिए आपका देखिए ये आपका बेस लाइन है, उसके नीचे जीरो, देखिए ये वाला सर्कुलर स्केल का, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर। इसका ऑपोजिट अगर ये अबव है आपका बेस लाइन से, ठीक है, ये तो नॉन जीरो है, ये तो दोनों पैरेलल कॉन्साइड कर रहा है। देखिए मेन स्केल और सर्कुलर, ये वाला देखिए ये अबव है जीरो आपका बेस लाइन से, ये बेस लाइन है उससे अबव है तो ये नेगेटिव जीरो एरर, और अगर आपका बेस लाइन से नीचे है तो वो पॉजिटिव जीरो एरर, और ये नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। तो वही चीज़ आपको इंग्लिश में लिखे हैं, इफ द जीरो ऑफ ए सर्कुलर स्केल इज बिलो द रेफरेंस लाइन व्हेन जो आर क्लोज पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर इफ द जीरो ऑफ ए सर्कुलर स्केल इज अबव द रेफरेंस लाइन व्हेन जो आर क्लोज नेगेटिव जीरो। दोनों पता चल गया। पॉजिटिव में क्या होगा आपका, ये मान लीजिए बेस लाइन का जीरो है, पॉजिटिव में नीचे होगा आपका सर्कुलर सर्कुलर, और आपका आपका पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा आपका जीरो ऊपर में होगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए ये अगर बेस लाइन है, ठीक है, तो ये ऊपर में जीरो होगा, ये नीचे में, इसमें आएगा आपका पॉजिटिव, इसमें आएगा आपका नेगेटिव, और ये आपका क्या होगा मेन स्केल जीरो, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये दोनों का बीच में डिफरेंस हम लोग देख लिए। या फिर इसको आप बोल सकते हो व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो द रेफरेंस लाइन, और व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज अबव द रेफरेंस लाइन। बिलो द रेफरेंस लाइन और अबव द रेफरेंस लाइन मीन्स व्हाट आई एम सेइंग, ये है आपका बिलो द रेफरेंस लाइन, ये दिस इज ए रेफरेंस लाइन, ये अबव द रेफरेंस लाइन। अबव यानी कि नेगेटिव और बिलो यानी कि पॉजिटिव, बिलो यानी कि पॉजिटिव। समझ में आ गया आप लोगों को, गेटिंग माई पॉइंट, ओके। और अगर आपको बोले करेक्ट रीडिंग कैसे निकालेंगे, तो ऑब्जर्व रीडिंग माइनस पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर, या फिर जीरो एरर भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर नहीं बोलने से भी आप लोग ऑब्जर्व रीडिंग माइनस पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है, या जीरो एरर, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट, आगे समझ में। देन thank you everyone for watching this video. If you like this video, then please share with your friends so that they can understand the topic very easily, okay.